کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں کمی۔ مرغی کا گوشت 3 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 594 روپے سے بڑھ کر 597 روپے ہو گئی ہے۔ فارمی انڈے بھی 4 روپے مہنگے ہو گئے ہیں، فی درجن قیمت 284 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، کیا تفصیلات ہیں قیمتوں کے حوالے سے؟ مصنوعات کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ برائلر کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا اور انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ برائلر کی قیمتوں میں آج دوسرے روز بھی اضافہ کیا گیا کیونکہ کھپت کے مقابلے میں سپلائی آج بھی جو ہے وہ کم کی گئی ہے۔ آج 3 روپے کا اضافہ کیا گیا اور مرغی کا گوشت جو گزشتہ روز 594 روپے فی کلو مقرر کیا گیا تھا، 3 روپے اضافے کے بعد 597 روپے فی کلو مقرر کر دیا گیا۔ زندہ برائلر کے دام میں 2 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر 390 جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 398 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ برائلر کے ساتھ آج انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انڈوں کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انڈوں کی قیمتوں میں 4 روپے فی درجن تک کا اضافہ کیا گیا۔ 280 روپے درجن سے قیمت بڑھا کر 284 روپے درجن آج مقرر کر دی گئی اور انڈوں کی پیٹی مارکیٹ میں 8,400 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ مارکیٹ میں فی انڈا شہریوں کو 25 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر اور انڈوں کی قیمتیں ایک عام صارف کی قوت خرید سے باہر ہے۔ برائلر جو ہے مسلسل 600 روپے فی کلو کے گرد ہی مقرر کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ وہی برائلر ہے جو کہ 350-400 روپے فی کلو تک بآسانی دستیاب تھا، لیکن سپلائی بہتر بنانے کی بجائے جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہانہ بنا کر قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتظامیہ برائلر اور انڈوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کرے۔ آنے والے دنوں میں کوئی کمی کا امکان ہے قیمتوں میں؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو انڈوں کی قیمتیں ہیں اس میں جو ہے وہ کمی کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ موسم کی تبدیلی کے بعد انڈوں کی کھپت میں کمی ہوتی ہے، جس کے بعد انڈوں کی قیمتیں عمومی طور پر موسم گرما میں کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ اس بار جو ہے وہ سپلائی کو متاثر کر کے یا مصنوعی قلت پیدا کر کے انڈوں کی قیمتوں کو بلند سطح پر رکھا جا رہا ہے، جبکہ برائلر کی قیمتوں کے حوالے سے جو پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ پیداواری لاگت بڑھنے کی وجہ سے متعدد برائلر فارمر کی جانب سے جو ہے برائلر کی پیداوار نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے احتجاج کا معاملہ، تحریک انصاف کے قائدین سمیت سینکڑوں کارکنان کے خلاف تھانہ سرور روڈ، گلبرگ، ریس کورس اور شمالی چھاؤنی میں 7 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مقدمات میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی سمیت 20 دفعات شامل کی گئی ہیں۔ جناح ہاؤس توڑ پھوڑ کے واقعے کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق پی ٹی آئی قیادت کی اماں پر 400 سے زائد مشتعل افراد گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ میاں اسلم اقبال اور میاں محمود رشید نے مشتعل ہجوم کی قیادت کی۔ حماد اظہر، مسرت چیمہ، زبیر نیازی، مراد سعید اور علی امین گنڈا پور نے جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دی۔ مشتعل مظاہرین 15 کروڑ سے زائد کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ تھانہ گلبرگ میں پولیس پر فائرنگ اور توڑ پھوڑ، عسکری پلازہ کو آگ لگانے اور گارڈ سے اسلحہ چھیننے پر 2 مقدمات درج کیے گئے۔ تھانہ ریس کورس میں واسا کا واٹر ٹینکر اور پولیس کانسٹیبل سے موٹر سائیکل چھیننے اور املاک کو نقصان پہنچانے پر 3 مقدمات درج کیے گئے۔ تھانہ شمالی چھاؤنی میں پیٹرول پمپ پر توڑ پھوڑ کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سرکاری اور نجی اداروں پر حملوں، توڑ پھوڑ، تشدد اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث گرفتار شرپسند عناصر کی تعداد 1386 تک جا پہنچی ہے۔ پنجاب پولیس کے مطابق شرپسند عناصر کی پرتشدد کارروائیوں میں پنجاب بھر میں 145 سے زائد افسران اور اہلکار شدید زخمی ہوئے۔ لاہور میں 63، راولپنڈی 28، فیصل آباد 21 اور اٹک میں 10 افسران اور اہلکار زخمی ہوئے۔ گجرانوالہ میں 13، سیالکوٹ میں 5 اور میاں والی میں 6 افسران اور اہلکار زخمی ہوئے۔ پنجاب پولیس کے زیر استعمال 69 گاڑیوں کو توڑ پھوڑ اور نظر آتش کیا گیا۔ نجی اور سرکاری گاڑیوں سمیت لاہور میں 17 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ شہریوں پر تشدد، نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے شرپسند عناصر کی سرکوبی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ سرکاری املاک، پولیس فورس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کے معاملے پر شرپسند عناصر کی تصاویر پولیس نے حاصل کر لی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق پرتشدد واقعات میں حصہ لینے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ شناخت مکمل ہونے کے بعد اگلی کارروائی شروع کی جائے گی۔ تصاویر اور ویڈیوز کی مدد سے شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ شرپسندوں کی شناخت کے بعد پولیس ایکشن لینے کے لیے تیار ہو گئی۔ گرفتار کیے جانے والے ملزمان کا پولیس کی جانب سے ریکارڈ بھی بنایا اور کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی کرمنل ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تاجر برادری کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق لاہور پولیس کو تاجروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ تاجروں برادری کے تحفظ کے لیے نگران صوبائی وزیر صنعت SM تنویر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا اور CCPO بلال صدیق کمیانہ کمیٹی میں شامل ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے تاجر برادری کو پورا تحفظ دیں گے، کسی کو کاروبار میں خلل نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد پنجاب میں حالات کشیدہ ہو گئے۔ امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کی درخواست پر صوبے میں فوج تعینات کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فوج کی 10 کمپنیوں کو پنجاب کے مختلف اضلاع میں تعینات کیا جائے گا۔ فوجی اہلکار لاہور، ملتان، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت دیگر اضلاع میں تعینات کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد پنجاب میں صورتحال کشیدہ ہے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے نگران پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے فوج تعینات کرنے کی درخواست کی تھی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، عمران خان کے 4 سال تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، گزشتہ 4 برسوں میں مقدمہ نہیں چہرہ دیکھا جاتا تھا۔ ہم نے خود کو قانون اور عدالت کے سامنے پیش کیا، ہم آج بھی نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ ہم نے جب 11 اپریل 2022 کو حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو اس کے بعد وہ بدنما اور ظالمانہ طرز عمل ہرگز اختیار نہیں کیا جو عمران نیازی کے 4 سال کے دور میں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ روا رکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 4 سالوں میں کیس نہیں فیس دیکھا جاتا تھا، یعنی مقدمہ نہیں چہرہ دیکھا جاتا تھا کہ کس کو جیل بھجوانا ہے اور کس کے ساتھ رعایت برتنی ہے۔ میں یہ بھی بات واضح کرتا چلا جاؤں کہ ہم اور ہمارے ساتھی آج بھی نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ ہم پر جو الزامات لگائے گئے تھے ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، جس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور پاکستان ہی نہیں، برطانیہ سے بھی تحقیقات کروائی گئیں، 40 سال کا ریکارڈ کھنگالا گیا اور خدا کے فضل و کرم سے مشہور زمانہ برطانیہ کی نیشنل کرائمز ایجنسی نے ہمیں کلین چٹ دی۔ یہ ہماری عزت نہیں تھی، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت میں اضافہ ہوا۔ میرے عزیز اہل پاکستان، ہم نے کبھی عدالت، قانون کا سامنا کرنے سے انکار نہیں کیا۔ ہم نے شدید تحفظات اور اعتراضات کے باوجود بھی قانون کا سامنا کیا، قانون اور عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ پنجاب بھر کے کالجز اور یونیورسٹیز اگلے 2 روز بند رکھنے کا فیصلہ۔ میاں والی میں بھی امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ شرپسند عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ۔ حساس مقامات کی سیکیورٹی مزید بڑھائی جائے گی۔ شرپسندوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے جلاؤ گھیراؤ میں املاک کو پہنچنے والے نقصان کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ سید محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ریاست پاکستان پر حملہ آور ہر شرپسند کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ سرکاری و نجی املاک پر حملہ کرنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی ہوگی۔ اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کو گزشتہ روز پیش آنے والے واقعات بارے ابتدائی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ ملکی صورتحال کے پیش نظر پنجاب بھر میں 11 اور 12 مئی کو ہونے والے 9ویں جماعت کے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔
ترجمان انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری بورڈ کا کہنا ہے کہ 11 اور 12 مئی کو ہونے والے 9ویں جماعت کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ 11 اور 12 مئی کو کیمسٹری اور اسلامیات کے امتحانات منعقد ہونے تھے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں تو پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز منہاس کی آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ Actually, they've been pushed back to Girja Chowk اچھا by water cannon and heavy contingent. ٹھیک Ab, some of them are asking کہ بھائی should we move back to Liberty or should we sit here؟ کیا کرنا ہے؟ ادھر سے پوچھیں نا، ادھر سے کس سے پوچھیں؟ دیکھیں اگر بیٹھنا ہے تو پھر اگر لمبا بیٹھنا ہے سمبولک ہے تو پھر جہاں بھی ہو، یا تو ادھر ہوتا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب ادھر سے اٹھ گئے ہیں تو پھر لبرٹی سکون ہے، پھر بیسٹ ہے، سکون ہے، چاروں طرف سے پبلک آتی ہے، وہاں ارینجمنٹ ہو جائیں گی، وہاں قالینیں بچھائیں گے، ڈیرا لگائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ جانے دیں واپس، لیٹس گو بیک ٹو آر اوریجنل۔ اے ہو گیا نا تو جو کرنا سی ٹھیک یہ ہو گیا، کٹھا کریے اسے ہوں کٹھا کرنا ہے رات بندے کو جو اسے کائنڈلی کال دے سارے۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں عمران خان کی گرفتاری نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ شاہ محمود قریشی بولے عمران خان عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ مرکزی صدر پی ٹی آئی پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کا موجودہ صورتحال پر بیان سامنے آ گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں ملک میں افراتفری کا عالم ہے، عمران خان کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا۔ شاہ محمود قریشی نے بھی عمران خان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان چاروں صوبوں میں مقبول ہیں۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک میں کہیں بھی عوام نہیں نکلے۔ عمران خان کے گرفتاری کے حوالے سے مریم نواز نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ صرف وہ بلوائی باہر آئے جنہیں زمان پارک میں ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ آڈیو سے ثابت ہو گیا کہ تخریب کاری کا منصوبہ عمران خان نے خود بنایا تھا۔ مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ میں مزید کہا کہ عوام نے تحریک انصاف کے دہشت گردوں کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ عوام نے کسی بھی پرتشدد احتجاج کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ عوام کا باہر نہ آنا عمران خان کی تخریبی سیاست کے منہ پر تمانچہ ہے۔ حکومت ان شرپسندوں سے کسی قسم کی رعایت نہ برتے۔ اینٹی کرپشن نے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ جعل سازی کے الزام میں مقدمہ درج۔ اینٹی کرپشن نے عمر سرفراز چیمہ کو لاہور پولیس کے حوالے کر دیا۔ سابق گورنر پنجاب کے خلاف 7ATA کا مقدمہ درج ہے۔ جعل سازی سے ہمشیرہ کی وراثت کا اندراج کرانے کا الزام۔ اینٹی کرپشن نے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی رہائش گاہ پر چھاپا مار کر انہیں گرفتار کر لیا۔ ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن وقاص الحسن کا یہ کہنا تھا کہ عمر سرفراز چیمہ کو گرفتار کرنے کے بعد لاہور پولیس کے حوالے کر دیا۔ پنجاب پولیس نے عمر سرفراز چیمہ کے خلاف 7ATA کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ پنجاب پولیس کے بعد اینٹی کرپشن کارروائی کرے گی۔ اینٹی کرپشن نے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے خلاف جعل سازی کے الزام میں مقدمہ درج کیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق عمر سرفراز چیمہ نے ہمشیرہ کو جعلی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے ذریعے غیر قانونی طور پر وراثت میں حصہ دلوایا۔ فاطمہ سرفراز چیمہ کی ڈاکٹر ظہیر صفدر سے 2013 میں طلاق مؤثر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ظہیر صفدر نے گزشتہ سال انتقال کے بعد فاطمہ سرفراز چیمہ کو جعل سازی سے وراثت میں حصہ دلوایا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ نے بطور گورنر اختیارات کا غلط استعمال کر کے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں ہمشیرہ کا اندراج کروایا۔ عمر سرفراز چیمہ نے گورنر کا حلف لینے کے 7 دن بعد اپنے سابق بہنوئی کی وراثت کا انتقال درج کروایا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شبیر حیدر ظفر، لاہور نیوز۔ آگے بڑھ آپ کو بتائیں نیب نے شہباز خاندان سمیت 16 ملزموں کو منی لانڈرنگ ریفرنس میں بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ نیب نے سپلیمنٹری رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف کی عبوری ضمانت میں 24 مئی تک توسیع ہو گئی ہے۔ 7 ارب 32 کروڑ روپے کا منی لانڈرنگ ریفرنس۔ احتساب عدالت کے جج قمرالزمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف ریفرنس کی سماعت کی۔ حمزہ شہباز نے طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست دائر کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ دوران سماعت نیب نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں سپلیمنٹری رپورٹ جمع کروا دی۔ رپورٹ میں شہباز شریف، ان کی اہلیہ، بیٹے حمزہ شہباز، سلمان شہباز سمیت 16 ملزمان بے گناہ قرار۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے اثر نو تفتیش میں ان ملزموں کا کوئی کردار سامنے آیا، نہ ہی منی لانڈرنگ ثابت ہو
हो सकी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया है कि नैब तरमीमी एक्ट की रोशनी में मुलजिमों पर करप्शन के इल्जाम साबित नहीं हुए और तफ्तीश में बेकसूर पाए गए। अदालत ने मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी, जबकि वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ और ताहिर नकवी की अबूरी जमानतों में 24 मई तक तोसी कर दी गई। नैब लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज, बेटे हमजा शहबाज, सलेमान शहबाज समेत 16 मुलजिमों के खिलाफ 7 अरब 32 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस दायर कर रखा था। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद कहते हैं, बड़े शहरों में आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रीन एरियाज़ में नई रिहायशी स्कीमों की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए ज़रई रकबे का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। पंजाब के 11 अजला के मास्टर प्लान की तैयारी। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मास्टर प्लान की तैयारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट उम्मे लैला नकवी ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि 11 अजला के नए मास्टर प्लान में ग्रीन एरियाज की वाज़ेह तौर पर हदबंदी की जाए। ग्रीन एरियाज में नई रहायशी स्कीमों की हरगिज इजाज़त न दी जाए। ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए ज़रई रकबे का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। इब्राहिम हसन मुराद का मजीद कहना था कि शहरों में होने वाली कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां मईशत के इस्तेहकाम की जमानत हैं। छोटे शहरों में कारोबारी और तिजारती सरगर्मियों के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएं। गैर कानूनी रहायशी स्कीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 11 अजला के लैंड यूज क्लासिफिकेशन मैप बनाकर मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को इरसाल कर दिए गए हैं। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स की मंजूरी और नोटिफिकेशन के बाद इन अजला के लैंड यूज प्लान बनाए जाएंगे। अब आपको एक अहम खबर से आगाह करें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे लाहौर शहर का दौरा। ड्यूटी पर मामूर पुलिस के जवानों से मुलाकात की। IG डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक अमियाना भी उनके हमरा थे। मोहसिन नकवी ने पुलिस जवानों के अज़्म और हौसले को सराहा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात क्या हैं, जानेंगे हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा इस विजिट के हवाले से। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने मैदान में आ गए और मोहसिन नकवी का सुबह लाहौर शहर का दौरा, ड्यूटी पर मामूर जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर IG पंजाब और CCPO लाहौर भी इनके हमरा थे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस जवानों की फर्ज से लगन और जज्बे की तारीफ करते हुए मोहसिन नकवी ने पुलिस जवानों के अज़म और हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब और लाहौर पुलिस के बहादुर और जरी जवानों का नाज है। आप अपने फराइज, मेहनत और प्रोफेशनलिज्म से सरअंजाम दे रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई की जाए और शहरियों के रोजमर्रा मामूलात में रुकावटें डालने वाले अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाए। जी बहुत शुक्रिया हसन इस तफसील का। वेलकम बैक। अब आपको बताएं तो महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियां और 6 फल मजीद महंगे कर दिए गए हैं। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी नरखों के बरक्स फरोख्त। अदरक 850, लहसुन चाइना 450, प्याज 70 रुपये किलो तक फरोख्त, सेब 480 रुपये किलो, केला 420 रुपये दर्जन तक बिकने लगा है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है सब्जियों की, उसमें 5 सब्जियां जो है महंगी की गई हैं और जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें अदरक 5 रुपये बढ़ाकर 725 रुपये मुकर्रर किया गया है। लेकिन ये सरकारी रेट लिस्ट तक महदूद है क्योंकि मार्केट में बदस्तूर अदरक जो है वो 850 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें करेले 10 रुपये महंगे करके 110 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में करेले की फरोख्त जो है 150 रुपये फी किलो तक की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद सरकारी रेट लिस्ट में 70 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन 70 के बरक्स मार्केट में फूल गोभी जो है 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी जो है 20 रुपये महंगी की गई और 165 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है भिंडी की, लेकिन मार्केट में भिंडी 165 के बरक्स 230 से 240 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर 10 रुपये महंगे करके 220 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मटर मार्केट में जो है 290 से 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। 6 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है। केला दर्जा अव्वल 5 रुपये मजीद बढ़ाकर 260 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का केला जो है 400 से 420 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा दो 180 रुपये मुकर्रर किया, लेकिन मार्केट में 250 से 270 रुपये फी दर्जन तक केला दर्जा दो फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 10 रुपये महंगा करके 220 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 280 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह खरबूजा 5 रुपये बढ़ाकर 95 रुपये मुकर्रर किया गया। अच्छा अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि जो लोग कीमतों में खुद इजाफा कर रहे हैं इनके खिलाफ इंतजामिया ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? आज बिल्कुल जो सरकारी रिलीज के बरस महंगे दामों सब्जियां कर रहे हैं
इंतजामिया या प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो उनके खिलाफ मुकदमा का इंतराज करती है और जुर्माने भी करती है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में सरकारी रेलियों के बरस सब्जियाँ, दालें और फल जो हैं महंगे दामों से करना मामूल बन चुका है। और यही वजह है कि शहरियों की जानिब से महंगाई की शिकायत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इस हवाले से शहरियों का ये मौका है कि जो सरकारी रेली जारी की जाती है उसके मुताबिक सब्जियाँ जो है वो फरोख्त नहीं की जाती। दर्जा अव्वल की मेरी सब्जियाँ जो हैं वो हमेशा महंगे दामों में फरोख्त की जाती हैं, जबकि जो दुकानदार या सब्जी फरोशन की जानिब से मौका से इख्तियार किया जा रहा है कि थोक मार्केटों या होल सेल मार्केटों, सब्जी मंडियों में सरकारी रेली पर अमल दरामद नहीं होता और महंगी सब्जियाँ या महंगी अशिया खरीद कर सरकारी रेली के मुताबिक सब्जी फरोख्त करना मुमकिन नहीं है। मार्केट में इस वक्त भी जो देखा जाए तो सरकारी रेलियों पर अमल दरामद ना तो शहर की सब्जी मंडियों में हो रहा है और ना ही ओपन मार्केटों में हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इंटरनेट सर्विसेज बंद होने से यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। शहर में 100 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स अमली तौर पर गैर फ़ाल शहरी सब्सिडी से महरूम हो गए। ख़रीदार कहते हैं गर्मी में घर के लिए सस्ता राशन ख़रीदने आए हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम बंद है। इंटरनेट सर्विसेज बंद होने से मामूलात जिंदगी मुतासिर। यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। शहर में 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स अमली तौर पर गैर फाल हैं। इंटरनेट की सर्विसेज बंद होने से यूटिलिटी स्टोर्स पर हर किस्म की फरोख्त बंद हो गई। शहरी हुकूमत की फराहम करदा सब्सिडी से महरूम हो गए। खरीदारों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राशन नहीं मिल रहा। इंतजामिया सिस्टम बंद होने का बता रही है। हुकूमत सिस्टम बहाल करे ताकि गरीब आवाम राशन की खरीदारी कर सकें। सिस्टम बंद है, गडिशों में भी बंद है, यहाँ पे भी आए हैं, रेलवे में भी ये भी बंद है। हम कहाँ जाएं, गर्मी में आए हैं तो वापस जा रहे हैं, पेट्रोल खर्च करके आए हैं। सुबह 8 बजे का मैं निकला हूँ घर से, घर पे आटा नहीं है, आटा जो सा ना मिल नहीं रहा है। मैं गडिशों भी होके आया हूँ और इधर भी आया हूँ मैं, तो यहाँ पे कह रहे सिस्टम नहीं चल रहा है, इधर भी नहीं चल रहा है, उधर भी नहीं चल रहा है। बताइए अब हम क्या करें, अब हम बहुत परेशान हैं। जिन इलाकों में नेट सर्विसेज बंद नहीं या लैंडलाइन इंटरनेट की सहूलत है, वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स का सिस्टम फाल है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स की सरदर्द जंग जारी है। गंदम की कीमत 4,800 रुपये मन और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2,750 रुपये से तजावुज़ कर गई है। फ्लोर मिल्स की 7 रोज़ा इलामती हड़ताल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान डेड लॉक बरकरार। आटे का बहरान शदीद होने लगा। शहर भर में गंदम और आटे के रेट इंतजामिया के बस से बाहर हो गए। गंदम की कीमत 48 रुपए फी मन और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2750 रुपए से तजावुज कर गई। 70 से जायद मजिस्ट्रेट भी शहरियों को सरकारी कीमत पर आटा फराहम न कर सके। सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिल्स की अलामती हड़ताल 17 मई तक जारी रहेगी। 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपए का फरोख्त हो रहा है। पॉलिसी का जो है ना फुकदान और नाकिस पॉलिसी है। देखें, ये जब प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, फ्लोर मिल साथ साथ खरीदारी कर रही होती हैं। ये पहली दफ़ा है कि फ्लोर मिल्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और लिमिट किया जा रहा है। लाहौर में तो 2750 रुपया रेट है रिटेल, लेकिन पिंडी में यही रेट तजावुज़ करके 3200 रुपये तक चला गया। तो अगर यहाँ पे गंदम नहीं आएगी तो यहाँ पे भी रेट बन जाएंगे। चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार अहमद मंटू का कहना है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियों का नोटिस लें। फ्लोर मिल्स को आइन पाकिस्तान के मुताबिक आज़ादाना कारोबार की इजाज़त दी जाए। PM को इंटरवीन करना चाहिए। इस वक्त मार्केट में आटे की शार्टेज है, गंदम लाने के लिए जो है वहाँ रोका जा रहा है। फूड डिपार्टमेंट के लोग बाहर खड़े हुए हैं, गंदम मिलों में आने नहीं दे रहे। 70% मिलें इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वट्टू के मुताबिक फ्लोर मिल्स के पास वाफर गंदम मौजूद है, लेकिन फ्लोर मिल्स मालिकान ज्यादा पैसा कमाने की आड़ में शहरी को महंगा आटा फराहम कर रही है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सूबा भर में गंदम खरीदारी अहदाफ का अमल सुस्त रवि का शिकार है। रोज़ाना 1 लाख मैट्रिक टन की बजाय सिर्फ 46,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी। महकमा खुराक ने 10 डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। महकमा खुराक की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर डिवीज़न में 3,83,000 मैट्रिक टन में से अब तक 3,07,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की गई। पंजाब भर में एक माह 10 रोज़ में 33,22,000 मैट्रिक टन गंदम काश्तकारों से खरीदी गई। गंदम खरीदारी का हदफ सुस्त रवि का शिकार होने पर महकमा खुराक पंजाब ने 10 डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स को शोकाज नोटिस जारी किए। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू का कहना था 45 लाख मैट्रिक गंदम खरीदारी के हदाफ मुकम्मल करने हैं। 33,22,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ पूरा कर लिया है।
जल्द गंदम खरीदारी अहदाफ मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मतवक्के रद्दोबदल के पेश नज़र शहर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कम होने का इंकशाफ हुआ है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पल पल बदलती मुल्की सूरत हाल। ऑयल टैंकर्स की नकलो हमल में रुकावट से शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई 40% तक मुतासिर। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लाहौर के तर्जुमान जहांजेब मलिक के मुताबिक मौजूदा सियासी हालात में ट्रैफिक के मसाइल पैदा हुए और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डिपो से सप्लाई मुतासिर हुई। दूसरी जानिब ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान नदीम मिर्जा का मौक़िफ़ है कि कुछ ऑयल टैंकर्स की ट्रांसपोर्टेशन का मसला था, लेकिन लाहौर के पंप्स को सप्लाई के हवाले से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। पंप मालकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के कमी की इतलात के बायस सप्लाई ऑर्डर्स कम किए हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम ना हुई तो पेट्रोल व डीजल के दाम मजीद बढ़ने का इम्कान है, जबकि सप्लाई मजीद मुतासिर होने का खदशा भी मौजूद है। डॉलर के हवाले से कुछ बात कर और आपको बताएं, सियासी कशीदगी और अमन व अमान की सूरत हाल से रुपये पर शदीद दबाव आ गया। रुपए की कदर में तकरीबन 3% कमी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 300 रुपये की शरह तबादला की हद छूने लगा है। मजीद महंगा होने के खदशे पर मार्केट में सट्टेबाज भी सरगर्म हो गए हैं। करेंसी मार्केट में डॉलर रेट को पर लग गए। 2 रोज में डॉलर 6 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। बुध को बैंकारी औकात के आगाज पर ही डॉलर की तलब बढ़ने लगी। दिन भर में डॉलर 5 रुपए 37 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 290 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। मंगल को इंटरबैंक में डॉलर रेट 284 रुपए 85 पैसे था और डॉलर 1 रुपए महंगा हुआ था। मार्केट जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में डीलर्स डॉलर की फरोख्त से गुरेज करने लगे। मजीद महंगा होने के इम्कान पर डॉलर होल्ड किया जा रहा है और ओपन मार्केट में डॉलर कम से कम 297 रुपए तक ट्रेड हुआ। मवासलात और तामीरात में एक के बाद एक स्कैंडल। 11 अफसरान 4 अरब 83 करोड़ से जायद की करप्शन में मुलव्विस। ग्रेड 16 के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। महकमा मवासलात व तामीरात में ठेकेदारों को नवाजने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। अफसरान 4 अरब 83 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन में मुलव्विस। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि सब इंजीनियर्स ने मुख्तलिफ स्कीमों में 4 अरब से जायद की एडवांस रकम कॉन्ट्रैक्टर्स को गैर कानूनी तौर पर अदा की। सब इंजीनियर महर अजमत हयात ने 2 अरब रुपए से जायद रकम की अदायगी की। खालिद महमूद चट्ठा ने 47 करोड़ 70 लाख रकम की गैर कानूनी अदायगी की। आसिफ महमूद राठौर 43 करोड़ 63 लाख, मोहम्मद इमरान 23 करोड़ 50 लाख रुपए की गैर कानूनी अदायगियों में मुलव्विस हैं। अशफाक अहमद 11 करोड़ 15 लाख, सलमान अहमद 30 करोड़ 24 लाख और असद खान 40 करोड़ रुपए की करप्शन में मुलव्विस निकले। जुल्फकार अली 10 लाख, खुबैब कासिम 2 करोड़ 15 लाख, सैयद आमिर हसन 16 करोड़, मुजफ्फर इकबाल ने 12 करोड़ 24 लाख रुपए की गैर कानूनी अदायगियां की। चीफ इंजीनियर R&D अजफर महमूद महकमाना इंक्वायरी कर रहे हैं। सेक्रेटरी CNW का कहना है कि महकमाना इंक्वायरी के साथ साथ एंटी करप्शन में भी इंक्वायरी की जा रही है। निगरान पंजाब हुकूमत का LDA के रोज़मर्रा अमूर को बरवक्त हल करने का फैसला। 4 माह बाद LDA गवर्निंग बॉडी इजलास तलब कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी बतौर चेयरमैन LDA इजलास की सदारत करेंगे। LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास के लिए अथॉरिटी डायरेक्टोरेट से वर्किंग पेपर मांग लिए गए। रवां बरस LDA गवर्निंग बॉडी का दूसरा इजलास तलब किया गया। एडिशनल DG हाउसिंग हेडक्वार्टर्स और अर्बन प्लानिंग से वर्किंग पेपर मांग लिए गए हैं। चीफ इंजीनियर 1, 2, CMP और CTP को भी मुरासला जारी कर दिया गया है। MD वासा, चीफ इंजीनियर टीपा, डायरेक्टर एडमिन, डायरेक्टर फाइनेंस को भी मुरासला जारी कर दिया गया है। DG LDA से मंजूर शुदा वर्किंग पेपर्स को C&I में जमा करवाने की हिदायत की गई हैं। शहर में ट्रैफिक रवानी की बेहतरी की कोशिशें। नाकारा ट्रैफिक साइन बोर्ड तब्दील और नए लगाने का मंसूबा बना लिया गया है। 16 मरकजी शाहराहों पर 7 करोड़ से ज़ायद रकम से ट्रैफिक साइन बोर्ड्स लगेंगे। टीपा ने सर्वे मुकम्मल कर लिया है। आवाम की सहूलत के लिए टूट फूट का शिकार ट्रैफिक साइन बोर्ड्स की मरम्मत का मंसूबा बना लिया गया। टीपा ने ट्रैफिक साइन बोर्ड्स लगाने के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया। प्लान के मुताबिक 16 मरकजी शाहराहों पर 7 करोड़ 50 लाख 61 हज़ार रुपए से ट्रैफिक साइन बोर्ड्स लगेंगे। ट्रैफिक साइन बोर्ड्स की तनसीब के लिए 4 पैकेजेस बना लिए गए। पैकेज 1 में जेल रोड, शाहराह सनत व तजारत, फिरोजपुर रोड और लिटन रोड शामिल हैं। पैकेज 1 पर बोर्ड्स लगाने के लिए 1 करोड़ 39 लाख 22 हज़ार रुपए का तखमीना लगाया गया है। पैकेज 2 में वहादत रोड, किनाल रोड और मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन का इंतखाब किया गया
है। पैकेज 2 पर अमल दरामद के लिए 1,97,00,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। पैकेज 3 में मेन बुलेवार्ड, सब्जदार, सामानाबाद, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, मौलाना शौकत अली रोड और पीको रोड का मंसूबा बनाया गया है। पैकेज 3 के ट्रैफिक साइन बोर्ड्स के लिए 2,04,00,000 रुपए का मंसूबा बनाया गया है। पैकेज 4 के तहत खियाबान फिरदौसी, PIA रोड और मादर मिल्लत रोड का इंतखाब किया गया है। पैकेज 4 पर लगने वाले नए ट्रैफिक साइन बोर्ड्स के लिए 2,08,00,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। टीपा की जानिब से बोर्ड्स की तनसीब का काम मंजूरी के बाद 1 माह के अरसे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर सफारी ज़ू में चिड़ियाघर और जलो पार्क से जानवर लाने का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर गुलाम रसूल कहते हैं सफारी ज़ू में तकरीबन 800 परिंदे और जानवर हैं। हाल ही में चिड़ियाघर से 100 मोर लाए। शहरियों ने भी परिंदों और जानवरों की कमी का शिकवा किया है। लाहौर सफारी जू में चिड़ियाघर और जलो पार्क से जानवर लाने का सिलसिला जारी है। सफारी जू में 610 परिंदे और 182 से ज्यादा जानवर मौजूद हैं। बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी लगाए गए। शहरियों और बच्चों का यह कहना है कि सफारी जू पहले की निस्बत तब्दील हो गया। पहले यहाँ पर जानवर कसीर तादाद में मौजूद थे। हम सफारी पार्क आए हैं बच्चों को लेके, मज़ा आ रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जहाँ ये पहले जिस तरह का था सफारी पार्क अब वैसा नहीं रहा और बच्चे हमेशा यहाँ पे आके एलिफेंट को मिस करते हैं। एंजॉय करने आए हैं, बहुत सारे एनिमल देखे हैं पर एलिफेंट की कमी है। न्यूज़ में जबकि दिखाया था कि एलिफेंट यहाँ पे आ रहा है सफारी पार्क में, पर बच्चे देखना चाह रहे हैं पर यहाँ पे नहीं है। डायरेक्टर सफारी जू गुलाम रसूल का यह कहना था कि कोशिश है कि नए जानवर और परिंदे लाए जाएं। सफारी जू में डॉक्टर्स जानवरों की सेहत का ख्याल रखते हैं। देयर इज़ अ वेदर शिफ्ट और एक समर जो है वो ऐसा एक हॉटनेस की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, तो हम इसमें फ़ैन्स हमारे जो है ना वो ऑलरेडी तमाम जो हाउसिंग्स हैं उसमें ऑलरेडी सीलिंग्स के साथ इंस्टॉल्ड होते हैं। तो हम कम गर्मी में पंखे और ज़्यादा गर्मी में जो है ना वाटर कूलर्स रन करते हैं। साथ में जो है ना वो गर्मियों में तमाम कार्निवोर्स के लिए आइस जो है इसमें आती है और उनके जो पानी है उसको हम रेगुलर चेंज करते हैं। प्लस उसमें आइस का एडिशन होता है ताकि उनको पीने के लिए ठंडा पानी मिले। सैरो तफरी के लिए आए बच्चे जहां शेरों और घोड़ों को देखकर खुश नजर आए, वहीं हाथी की कमी भी महसूस करते रहे। ब्रेक के बाद आपको बताएं महंगाई ने ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया अवामी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर कर दी है। अवामी सवारी भी करीब की पहुँच से कोसों दूर। सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 20,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। महंगाई के बायस मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त बुरी तरह मुतासिर हो गई है। मोटरसाइकिल भी महंगाई दौड़ में आगे आगे। होंडा, यामाहा के बाद सुजुकी कंपनी ने भी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया। मोटरसाइकिलों की कीमतें 13 से 20,000 रुपए बढ़ी। सुजुकी GD 110 सीसी की कीमत 13,000 रुपए इजाफे से 3,35,000 रुपए हो गई। GXS 125 सीसी 19,000 रुपए महंगी, नई कीमत 4,88,000 रुपए तक पहुँच गई। GS 150 सीसी 14,000 इजाफे से 3,64,000 रुपए की हो गई। GR 150 सीसी 20,000 रुपए इजाफे से 5,21,000 रुपए मुकर्रर। सुजुकी 250 सीसी बाइक 10,40,000 रुपए की हो गई। मोटरसाइकिलें महंगी होने से फरोख्त बुरी तरह मुतासिर। कारोबार ठप होने पर डीलर्स ने सर पकड़ लिए। कहते हैं दुकानों के लिए किराया और अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गए। नई तो दूर, अब पुरानी मोटरसाइकिल भी नहीं बिक रही। मार्केट में इसके बिल्कुल सन्नाटा है, लोगों के पास बाइंग परचेज बिल्कुल नहीं रह गई है और उसका इफेक्ट जो है ना वो सेकेंड हैंड पे भी आ रहा है। और पहले होता था लोग पुरानी बाइक सेल करके नई परचेज़ करते थे पैसे जमा करने के बाद, लेकिन अब लोग रिपेयरिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, वो परचेज़ की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहे। सुजुकी की नई मोटरसाइकिलों की इजाफा शुदा कीमतों पर अमल दरामद कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद शाहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शहर की 3 यूनियन काउंसिलों में वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने के लिए 1.5 साल बाद भी वासा इंतजामिया काम का आगाज़ ना कर सकी। पंजाब की सियासी सूरत हाल से गैर मुल्की ग्रांट पर कदगन लग गया। गैर मुल्की ग्रांट से 3 यूनियन काउंसिलों को मॉडल बनाने का मंसूबा। 1.5 साल बाद भी वासा इंतजामिया इस मंसूबे पर काम का आगाज ना कर सकी। पंजाब की सियासी सूरत हाल से गैर मुल्की ग्रांट पर कदगन लग गया। वासा ने हमजा शहबाज और परवेज इलाही दौर में 3 मॉडल यूनियन काउंसिलों का प्रोजेक्ट दोबारा जिंदा किया। निगरान दौर हुकूमत में 3 मॉडल यूनियन काउंसिल का मंसूबा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। 3 यूनियन काउंसिलों का मॉडल बनाने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।